کوئی بھی چیز چھوٹی سی ایک لبن بھی لا کے دے تو اس کو شکریہ جزاک اللہ خیر، وہ چاہتا ہے، اور ہر عورت چاہتی ہے کہ جو وہ کرتی ہے اس کے اوپر وہ تعریف. اگر اس نے کچن صحیح کر دیا، صفائی کر دی، کپڑے دھل دیے، پریس کر دے، ماشاءاللہ کیا اچھے تم نے کیے، کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، بیڈ روم کیسا. یعنی ہر بیوی چاہتی ہے، ایسے ہی شوہر بھی چاہتا ہے تم ایک دوسرے کی تعریف کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوگا. یہ جنتیوں کی پہچان ہے. دیکھو جنت میں بازار حسن سے لوٹے، عورتوں نے تعریف کی تو مردوں نے بھی ان کی تعریف کی کہ میرے بعد تو تمہارا بھی حسن تو بالا ہو گیا. اسی طرح وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت ایک جنتی کو عطا کی جائے گی کہ وہ جس طرف بھی نظر اٹھا کر کے دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں اور بادشاہت ہی بادشاہت دیکھے گا. ایک جنتی کو وہ مارکی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اب آئیے دیکھیں جنت میں جائے گا کون، جنت میں کون جائے گا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے روز اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. کیا تم اگلے ٹائم جاگنے کی حالت میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت تو دیکھنے میں تم کوئی دقت نہیں محسوس سے دیکھ لیتے ہو کہ چاند کا ایک سورج کا ایک گولا نکل رہا ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرو گے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. سنو، بڑی معرکۃ الارا حدیث ہے کہ ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. میرا خیال ہے اسی لیے ہمارے بہت سارے احباب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں تم کسی امام کو نہیں مانتے تو تمہارا کون امام ہوگا قیامت کے دن؟ ہے بہت اسی بات، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ہم تو قیامت کے دن اپنے پیر کے پاس لگ جائیں گے، تم کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ میرا خیال ہے یہ حدیث اسی کے تعلق سے انہوں نے سوچا ہوگا. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ حدیث سنو، پتہ چلے گا تم کس پیر کے پیچھے لگے ہو. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آستانے، چوکھٹ، چبوترے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاں، کوئی شدہ لے کے کھڑا ہوگا، کوئی چبوترا لے کے کھڑا ہوگا، کوئی خانقاہ لے کے، سب اپنے اپنے پیر کے دامن پکڑ کے کھڑے ہو. سنو، تو جو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ان کے علاوہ باقی بچیں گے، اچھا تو وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. انہی کے پیچھے وہ کیا کریں گے؟ چل پڑیں گے. پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے اور آگ میں گرنے لگیں گے، آگ میں گرنے لگیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ہاں، وہ جب صرف باقی رہیں گے، وہ نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے. وہ نیک بھی ہوں گے اور وہ سنو گنہگار بھی ہوں گے. یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہوں گے، ان کی نیکیاں بھی ہوں گی اور وہ گنہگار بھی ہوں گے. علاوہ ازیں اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے ان میں. پھر اللہ یہودیوں کو بلائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں. تم نے اپنے تئیں ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا. تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے. اللہ فرشتوں کی طرف اشارہ فرمائے گا انہیں لے جاؤ جہنم کی طرف. چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم ایسی ہوگی گویا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے،
एक हिस्सा दूसरे हिस्से को हड़प कर रहा होता है, और वो आग इन शिर्क करने वालों को मैदान महशर से शराब की तरह, पानी की तरह महसूस होगी। फिर ये लोग उसी जहन्नम में गिरना शुरू हो जाएंगे उसी जहन्नम में, यहां तक कि कोई नहीं बाकी बचेगा, सारे जहन्नम में चले जाएंगे। फिर मसीहियों को, क्रिश्चियनों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा तुम किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे हम ईसा इब्नुल्लाह की इबादत करते थे, हम अल्लाह के बेटे मसीह की इबादत करते थे। कहा जाएगा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम उनकी इबादत नहीं करते थे, तुम शैतान की इबादत करते थे, अल्लाह के ना कोई औलाद है ना कोई बेटा है, तो फिर तुम अल्लाह के बेटा तुमने कैसे बना लिया? चुनांचे उनके साथ भी यही मामला होगा, इशारा किया जाएगा, और उनसे अल्लाह पूछेगा तुम क्या चाहते हो? कहेंगे हम पानी पीना चाहते हैं। अल्लाह कहेगा इनको जहन्नम में डाल दो, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और समंदर की बड़ी मौज छोटी मौज को अपने अंदर सुमो कर बुलंद करती होगी, और जहन्नम एक दूसरे को खा रहा होता है। उसमें अब वो नेक भी होंगे, गुनहगार भी होंगे, तो उनके पास एक ऐसी सूरत में आएंगे और कहेंगे, अब सिर्फ वो लोग बाकी बचेंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे, वो लोग खड़े होंगे। उसमें नेक लोग भी होंगे, गुनहगार भी होंगे, तो उनके पास अल्लाह ताला अपनी असली सूरत में तशरीफ लाएंगे। वो नेकों के और गुनहगार, लेकिन वो मुवाहिद होंगे, मुशरिक नहीं होंगे। मुशरिक, ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी जन्नत में चले जाएंगे, सिर्फ मुवाहिद बाकी रहेंगे, जिसमें गुनहगार भी होंगे और नेक लोग भी होंगे। अब अल्लाह अपनी असली सूरत में उनके ऊपर जाहिर होगा, और हर गिरोह जो जिसकी इबादत करता था वो उसके पीछे जा चुका होगा। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सब तो अपने अपने मानने वालों के पीछे चले गए, तुम यहां क्या खड़े हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो अहले तौहीद कहेंगे, अहले तौहीद जो गुनहगार भी होंगे, नेक भी होंगे, वो कहेंगे ऐ हमारे रब, जब उन लोगों के पास हमारी जरूरियात होती थी तब तो हमने उनको छोड़ दिया, हम उनके पास गए ही नहीं समझ आई? हाँ, ये बेटा बेटी बाबा देगा, मुकदमा बाबा जिताएगा। जब सब कुछ जरूरियात होती थी हम तो तुझसे मांगते थे, जब जरूरत थी दुनिया में तो हमने तो उनको छोड़ दिया, उनके साथी नहीं बनाया, फिर आज कैसे हम उनके साथ जाएंगे? फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा रब हूं, अल्लाह हूं। तो ये अहले तौहीद कहेंगे हम तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। सुनो तहकीक ये, हाँ, कौवा कान लिए जा रहा उसी के पीछे मत दौड़ो, वहां भी जन्नत में भी ये है। जब अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हारा रब हूं, तो वो कहेंगे हम तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हम तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते। 2-3 मरतबा कहेंगे ला नुशरिकु बिल्लाहि शैयन, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते थे। हम कैसे मान लेगी तू अल्लाह है? अल्लाह, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहां तक मामला आएगा कि करीब होगा कि इन अहले तौहीद में से भी कुछ लोग वापस पलटना शुरू हो जाएं, यानी कुफ्र की तरफ। करीब होगा कि इन अहले तौहीद में से कुछ लोग वापस पलटना शुरू हो जाएंगे। तब अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा क्या तुम्हारे दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई निशानी है? दुनिया में तुमको कुछ बताया गया था मेरी निशानियों के बारे में? कुछ है निशानी कि जिसके जरिए तुम अपने अल्लाह को पहचान सको? वो कहेंगे हाँ वो निशानी है, ए अल्लाह वो निशानी है। तब अल्लाह ताला अपनी पिडली मुनकशिफ फरमाएगा, पिडली अल्लाह अपनी पिडली खोलेगा, और जैसे ही पिडली खुलेगी तमाम अहले तौहीद अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। हाँ, ये निशानी हमें बताई गई थी कि अल्लाह की पिडली होगी और अल्लाह वो पिडली खोलेगा क़यामत की दिन। हमें ये बताया गया था, अब हम मान गए कि तू हमारा अल्लाह है। सब सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह, ये हदीस सहीह बुखारी की है। किसकी है? हाँ, तो अल्लाह की पिडली भी है, वो खुलेगी क़यामत के दिन। ये अहले तौहीद का वो होगा जो इस पे ईमान लाते हैं। इस तरह से मेरे अजीजों जन्नत में ये लोग दाखिल होंगे। अब यहीं से जमात का भी आपको अंदाजा हो गया होगा, जिनका अकीदा ये होगा वो जन्नत में जाएंगे। उनमें गुनहगार भी होंगे, चोर भी होंगे, बदमाश भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, डाकू भी होंगे, लेकिन इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन
यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जो गुनाह है अल्लाह की मर्जी है, जिसके लिए चाहे माफ कर दे। इसका यह भी मफहूम नहीं है कि सिर्फ तौहीद की रट लगाते रहो और एक दूसरे का खून बहाते रहो, चोर बनो, चक्के बनो, बातानी बनो, फासिक, ना, हरगिज़ नहीं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला हमें ऐसे जन्नतियों में से बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं आपको एक और बात बताऊं। जन्नत में जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह तबारक ताला ने अहले तौहीद के बारे में जन्नत में दाखिला होगा। मुस्नद अहमद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक लंबी हदीस आई है जिसमें क़यामत के रोज़ अंबिया और शहीदों की सिफारिश के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि अना अरहमुर राहिमीन, अला अरहमुर राहिमीन, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ। अदखिलू जन्नती मन काना ला युशरिकु बी शैयन क़ाल फयदखुलूनल जन्नह। अल्लाह फरमाएगा कि उन सबको जन्नत में दाखिल कर दो, उन सबको जन्नत में दाखिल कर दो जो मेरे साथ मामूली सा भी शिरक नहीं करते थे, उन सबको जन्नत में दाखिल कर दो। मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैं उन सब उनके गुनाहों को माफ कर रहा हूं। और जन्नत में जैसा कि मैंने बताया कि जन्नत में मुशरिक का दाखिला हराम है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यह है जन्नती गिरोह, यह है जन्नती जमात जो शिरक नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया कि जो शिरक की हालत में मरा, अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इनका कोई सिफारिशी भी नहीं होगा क़यामत के दिन, इन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, और आपको ये पता है जन्नत में सबसे पहले हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। अल्लाह के रसूल में का जन्नत में मकाम महमूद होगा, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे लिए दुआ करो, जब अजान सुनो तो दुआ पढ़ो, क्या अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता, ये वसीला वल फ़ज़ीला, आति मुहम्मदनिल वसीला, कि अल्लाह हमारे नबी को मकाम वसीला अता फरमा। हाँ, ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये दुआ पढ़ेगा क़यामत के दिन मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ होगा। जन्नत में जो सबसे पहला गिरोह और सबसे पहली जमात दाखिल होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी शक्लें कैसी होंगी, उनकी सूरतें 14वीं रात के चाँद की तरह चमकते हुए चाँद की तरह होंगी। वहाँ ना उन्हें थूक आएगी, ना पैखाना आएगा, ना नाक की रेंट वगैरह निकलेगी। उस जन्नत में उनके बर्तन, उनकी कंघियाँ सोने और चांदी के होंगे और उनकी अंगेठियाँ इंतहाई खुशबूदार लकड़ियों की होंगी और उनका पसीना कस्तूरी होगा। और उन जन्नतों में से हर एक के लिए 2 बीवियां दी जाएंगी। कितनी बीवियां बोलो? हाँ, अल्लाह हम सबको अता फरमाए, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में तो 4 हैं, वहां 2 मिलेंगी। बहरहाल हुस्न की वजह से। और वो बीवियां कैसी होंगी? ये हमारी मैली कुचैलियों की तरह थोड़ी। हाँ, सुनो, वो बीवियां, अल्लाह अकबर, वो बीवियां कैसी होंगी? हुस्न और जमाल की वो तपिश होगी उनके अंदर, उसकी वजह से उन हूरों के गोश्त के पीछे से उनकी पिडलियों का गूदा दिखलाई देगा। अल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, बोलो आमीन। हाँ, उन जन्नतियों के दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं होगा, सब भाई भाई होंगे। यहाँ मर रहे हो ना, कट रहे हो, जिसको देखो अपनी डफली बजा रहा है, तू फलाना, तू फलाना, तू फलानी फ़िरक़े का, तू फलानी जमात का। ये फ़िरक़े, जमात, टोलियाँ, ये सब कुछ वहाँ नहीं काम आएंगी। अकेले आए हो अकेले जाओगे। ये ना कोई पीर, ना कोई मुरीद, ना कोई खानका का, ना कोई दरगाह, ना अलीता, ना पलीता, ये सारे मुल्ले मौलवी मरने के बाद भी 1.5 गज का कपड़ा लेके अपने कुर्ते का चले जाएगा तुम्हारे घर पे, 40 दिन डेरा डाल के खाएगा, पिएगा, दोयम स्वयं तीजे, सब कुछ करवाएगा और तुम्हें जहन्नम में पहुंचाएगी। आओ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, वहाँ कोई इख्तलाफ नहीं होगा, ना उनको आपस में गुस्सा आएगा। उनके दिल एक आदमी की तरह होंगे और वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। और जन्नत में जन्नतियों का खाना, अल्लाह अल्लाह क्या होगा? अल्लाह फरमाता है वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहम तैरिन मिम्मा यश्तहून, तरह तरह के लजीज फल जिसे चाहें तोड़ लें। दिल चाहा फलों का गोशा आया, तोड़ के खा लिया। परिंदे दिल चाह भुने भुने परिंदे आकर के सामने हाजिर हो गए। वफ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन, उसमें हर वो चीज़ होगी जो दिल को पसंद और निगाहों को लज्जत देने वाली होगी। अल्लाह अकबर।